चलिए आज शुरू करते हैं थर्ड क्लास और पढ़ते हैं सेल के बारे में और सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग जो केवल प्लांट सेल के अंदर होता है लेकिन वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। वो कवरिंग कौन सा है? सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी पढ़ते हैं देयर इज अनदर कवरिंग that is present only in plant cell. Why there is a new covering and the additional covering present in the plant cell? Because unlike the animal cell, plant cell survive in extreme unfavorable condition. Okay, therefore they need the extra covering to protect and withstand with the change in the environment. That's why the cell wall is here. Cell wall is a rigid, non-flexible, protective, thick layer outside the plant cell. Okay, what the cell wall is? Cell wall is additional layer in the plant cell that is very rigid, not flexible. Okay, this is the structure of plant cell. This is the structure of animal cell. Draw in your copy. Confirm? It is permeable, freely permeable. It allows all the things to enter and exit that is essential for the plant. Okay. By the process of osmosis and diffusion. Confirm? चलो आगे बढ़ते हैं। It is composed of cellulose that is the non-living substance. Okay, क्या चीज का बना हुआ पता चल गया? Okay, it is made up of cellulose. Generally, except the plant have the cell wall, but there is a cell wall also present in fungi. Some of the fungi and bacteria which help them to survive in the extreme condition. Let us move further and understand the function of the cell wall. The first function of the cell wall, as we understand, it provides the strength to the plant. Strength देता है to withstand in the extreme difficult conditions. How this is possible? How cell wall protect them and provide the strength? Actually, what happen when cell wall or cell absorb the water from the surrounding by osmosis, these cells swell up, start swelling up. As you know, when cells swell up, they exert the pressure outside, and this cell membrane is not enough to withstand with the pressure exerted outside by the cell. Therefore, there is an additional layer called cell wall which apply equal pressure inside that equalize the pressure exerted by the cell outside and therefore cell cannot get damaged. समझ में आ गया? सेल जितना प्रेशर लगाता है स्वेल करने के बाद एक्सटर्नली उतना ही प्रेशर कौन इंटरनली लगा देता है? सेल वॉल। ओके, तो बैलेंस हो गया कि नहीं? फोर्स पुश and pull are become equal. Similar force by which swollen cell exerts outside is equalized by the force cell wall. Okay, now cell gives definite shape to the cell. पता चल गया? Because it is rigid, it provides the definite shape to the cell. It protects the cell from pathogen and mechanical injuries. बाहर से चोट ना लगे इससे बचाता है। पैथोजन में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से भी बचाता है उसको। कौन? सेल के बाहर का जो प्लांट सेल के बाहर जो प्रोटेक्शन होता है सेल वाले बचाता है। थर्ड फंक्शन, अंडरस्टैंड दैट इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजन and mechanical injuries. Okay, now the next one is it allow to withstand in very dilute hypotonic solution. आपको पता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? बता तो दिया था। ठीक है, हाइपो
टॉनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करता है, स्वेल करना शुरू करता है। स्वेल करने से ब्रस्ट ना हो जाए, इससे बचाता है उसको। सेल वॉल इज नॉन लिविंग थिक रिजिड and help plant, fungi and bacterial cell to survive in the greater change in the surrounding much more than the animal cell। एनिमल सेल उस कंडीशन में नहीं रह सकता है। सेल वॉल का ज़्यादा बेनिफिट क्या हो गया, सेल वॉल उसको अलग अलग इन्वायरमेंट में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, लेकिन एनिमल सेल सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। समझ में आ रहा है सेल वॉल का टॉपिक। चलो, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, दैट इज वन ऑफ देम इज माइकोप्लाज्मा, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट हैव लैक ऑफ सेल वॉल। उसके पास सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि ये जो है आपको माइकोप्लाज्मा आर द कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस, बट एंटीबायोटिक कैन नॉट एक्ट ऑन इट बिकॉज देयर इज लैक ऑफ सेल वॉल। कन्फर्म हो गया सेल वॉल का टॉपिक। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब टॉपिक, कटक से कॉपी में लिख लो इसको। दिस इज द क्लीन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यू ड्रॉ इन योर कॉपी। हाउ डीएनए एंड प्रोटीन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। चलिए अब बात करते हैं सेल के अंदर सबसे पावरफुल बंदा का, जो सेल का क्या है, ब्रेन कहलाता है, दैट इज द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शन विद इन द सेल। ओके, बिकॉज इनसाइड द सेल देयर आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ओके, then what the nucleus is? Nucleus is the spherical bodies inside the cell. Mostly it is found in the center, but in plant cell it is found in the side because most of the space inside the plant cell is covered by the vacuoles, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कर लेता है ज़्यादातर कवर, वैक्यूल्स। तो बात करते हैं हम लोग, अभी तो न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। न्यूक्लियस क्या है भाई, ये किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा 1831 में। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है, सबसे बड़ा चीज़ जो दिखता है स्ट्रक्चर सेल के अंदर, वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। इसका शेप कैसा हो सकता है, स्फेरिकल या ओवल हो सकता है। ज़्यादातर केस में कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। प्लांट सेल में इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन एनिमल सेल में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस का मेन काम तो है क्या करना भैया, फंक्शन को कंट्रोल करना, बट ये इसका एक और काम है, ये सीबीआई की तरह काम करता है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो सेल के अंदर का है वो इकट्ठा करके रखता है, कोडिंग करके रखता है, और वो ट्रांसफ़र कर देता है पेरेंट्स से उनके बच्चों में। यानी पहला काम तो पता चल गया, ये कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल, एंड सेकेंड इज इट ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन और ऑफस्प्रिंग। इट मीन्स हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन बच्चों में जाता है उसको हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। समझ में आ गई है दोनों बात। चलो बात करते हैं सेल का, जरा स्ट्रक्चर देख लो। सेल के अंदर डबल लेयर होता है। किसका होता है, डबल लेयर होता है, प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है। लिविंग चीज़ का बना होता है, डबल लेयर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने देखा होगा ढेर सारा ये कट रहता है इसके पास। ये जो कट है वो पोर्स है, उसके अंदर क्या होता है, पोर्स दैट अलाउ सब्सटेंस टू एग्जिट एंड एंटर। न्यूक्लियर पोर्स अलाउ सब्सटेंस टू एंटर एंड एग्जिट, एंड द आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस। आउटर कवरिंग क्या करता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। और ये कट जो देख रहे हो कहीं कहीं पे, यहाँ पे फिर से क्या होता है, बैग लगे स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये बैग लगे स्ट्रक्चर दिख रहा है, अटैच टू द न्यूक्लियस इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट देयर इज अ स्मॉल membrane-less bodies attached to the endoplasmic reticulum that is attached to the nucleus. Endoplasmic reticulum that attached to the nucleus having
small spherical body on the surface that is called ribosome. A ribosome help in the synthesis of protein. याद रहेगा किस में हेल्प करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है. ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है? प्रोटीन स्टोर करता है ये और पैकेट बना के रखता है और दूसरे को देता है. ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. बट यहाँ पर मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है क्या करना भाई? प्रोटीन लेके रखना, क्योंकि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है. और प्रोटीन बनाता कौन है इसके ऊपर? ये जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी जिसके पास कोई कवर नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस होता है. जैसे इसमें देखा ना कवर होता है, लेकिन राइबोसोम्स में कवर नहीं होता. छोटा सा दिखने वाला बंदा एकदम ऐसा दिखता है. राइबोसोम्स कैसा दिखता है? गोली की तरह दिखता है ऐसा. ये राइबोसोम्स हो गया. कैसा दिखता है? गोल तरह. उसका मेम्ब्रेन नहीं होता. ठीक है, तो ये जो आपने देख लिया ये बाहर वाला कवर हो गया. वो क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है, जेली लाइक सब्सटेंस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. और ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल. ये उस समय दिखता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, अभी बात करेंगे हम. और ये सेल के अंदर अपना छोटा सा ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर अपना क्या होता है? राइबोसोम और आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड. इसके अंदर होता है कौन सा? आरएनए. और इसके अंदर अपना क्या होता है? आरएनए. और प्रोटीन इसके अंदर खुद होता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए इसके पास क्या है? इसके पास राइबोसोम्स होता है. थोड़ा सा और बात कर ले, हमने बता दिया इसके बारे में. अब एक एक करके देख लीजिए. न्यूक्लियस क्या करता है? स्टोर करता है क्रोमेटिन का. ये क्रोमेटिन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है. क्या क्या होता है मैंने बता दिया. इसके साथ इसके पास क्या होता है? क्रोमेटिन. कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर. और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ये इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए. ये तो हो गया न्यूक्लियस के अंदर का चीज़. न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडीज रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस. जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज है, जैसे आपने बैक्टीरिया देखा था जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, उनके पास केवल क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है. क्या होता है उनके पास? न्यूक्लियोलस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर. चलो आगे बात करते हैं हम लोग. न्यूक्लियस क्या करता है? स्टोर करता है क्रोमेटिन. हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, प्रोटीन होता है. वो प्रोटीन किसके फॉर्म में होता है? चिपक चिपक के प्रोटीन क्या बनता है? यानी ये जो डीएनए है वो कंडेंस होके बनाता है क्रोमेटिन. और कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर. इस पूरे न्यूक्लियस में जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. और उसके अंदर जो डीएनए रहता है वो मिलके क्या बनाता है? क्रोमेटिन. याद रहेगा क्या बनाता है? क्रोमेटिन बनाता है. वो क्रोमेटिन जिस समय सेल का डिवीजन होता है उस समय वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल. क्या बोलते हैं उसको? क्रोमेटिन मटेरियल. यहाँ देख लीजिए न्यूक्लियस का काम हो गया. न्यूक्लियस कैसा होता है? कंडेंस क्रोमेटिक. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? कंडेंस क्रोमेटिन रीजन होता है वेयर राइबोसोम सिंथेसिस अकर. यानी इसके अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है. राइबोसोम जो मैंने बताया कि क्या है? वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है. ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में ये हो गया. न्यूक्लियोलस ये वाला देख रहे हैं. इसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन रीजन होता है जहाँ पे क्या बनता है? राइबोसोम का सिंथेसिस होता है. उसके अंदर मैंने बता दिया था पहले डीएनए और प्रोटीन होता है. आउटर लेयर की बात हम लोग कर चुके हैं. चलो, जिसके अंदर क्या होता है? पोर्स होता है. पोर्स क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करता है. फटाफट आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बढ़ते हैं. न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. जिसमें सभी लिविंग कंपोनेंट है, प्रोटीन, विटामिन, फैट सब मिला हुआ है. और आगे बढ़ते हैं. क्रोमोसोम्स ये सबसे खतरनाक चीज़ है जो हमारा इंफॉर्मेशन चुरा के रखता है, अब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र करता है. एक्चुअली क्या है? क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड
ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये कब होता है? सेल डिवीजन में, जिसमें हेल्प करता है कौन सा? आरएनए। सेल डिवीजन दे कन्वर्टेड इनटू बंच ऑफ थ्रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन, यानी डीएनए जो है वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। डीएनए क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है भाई? हम लोग के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए? याद होगा इस तरीके से क्रोमोसोम्स बना लीजिए आप। ऐसा होता है क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स हो गए। याद होगा हमारे पास XX और XY क्रोमोसोम्स है। XX होता है किसमें? फीमेल में, है ना, और XY किसमें होता है? मेल के अंदर होता है। कितना होता है? 23 पेयर्स। कितने होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए बात हो गया। अब फिर से बता दो क्रोमोसोम्स कहाँ से बना? जो डीएनए है अंदर, डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर, वो डीएनए क्या बना लेता है? ठीक है, मिलके क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। और जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स क्या बनाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो मैंने बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जमा कर लेता है पूरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। यानी उस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या रहता है? क्रोमोसोम्स। और उस क्रोमोसोम्स का जो काम करने वाला बंदा है वो क्या है? जीन। क्या है? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन इधर उधर कौन करता है? जीन। याद रहेगी बातें। और कुछ बातों के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय, एंड राइट एवरीथिंग इन योर कॉपी।